हो रहा है नहीं हो रहा। Hello, hello, hello. And I think Komal said it right, that we all walking in these red jumpers is like an overkill. I like that joke. It was funny. Komal hitting it out of the park. Thank you for coming. Thank you for being here with us today. Welcome to the trailer launch event of a very, very, very special film to us, Kill. We are so thrilled and absolutely excited to be sharing the world of Kill with you, all of you, finally. Let's rewind and take a look at where this journey began. Action direction for landmark films such as The Avengers, Snowpiercer, Our Very Own War, and many, many, many more. We're extremely delighted that he could join us today to witness our trailer launch. This is so special to all of us, and I'm sure to the actors who worked under his baton. Now I'll just give you some fun facts. So here is just one for the team, for everybody here. The kill count in the screenplay is exceeding 40, which is a rarity for a film that is based in a compact and a restricted setting such as a train. The production required close to 150 liters of fake blood to accommodate all the intense action. Definitely this film has been made with a lot of blood and sweat. All right, so I know we have a lot of questions, लेकिन उससे पहले लक्ष्य quickly, you know, इंडस्ट्री में जो आना चाहता है उसका लक्ष्य होता है धर्मा, और यहाँ पे आते ही you know, the ball is out of the park. You're working with Karan Johar, you're working with Guneet Monga, and this amazing crew here. What do you have to say? Firstly, thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. I've expressed my gratitude to both of them in person as well. My legs are still trembling, sorry. I'm still a little nervous to see so many people. Or the trailer. क्या बात है, बच्चा भी किल देख के काफी enjoy किया है, it seems like. But it's been 9 साल हो गए मेरे को बॉम्बे आए हुए, और मेरा सपना था कि एक दिन फिल्म स्टार बनूंगा और धर्मा के साथ बनूंगा. तो 9 साल लग गए उस चीज़ को होते होते, लेकिन वो एक दिन आ ही गया. And thank you so much to Karan sir, Purva sir, and the whole of Dharma for always standing by me, always supporting me. Right. I've had quite a journey in Dharma itself. So throughout they were with me, and also like Guneet ma'am. Back in when Lunchbox came out for the first time, मैंने उनको DM किया था Instagram के ऊपर, मुझे याद है अच्छे से, कि मैम अगर हो सके तो कुछ मौका मिलेगा तो मैं काम करना चाहूँगा आपके साथ एक ना एक दिन, because it was such a fantastic film these guys made. उसके बाद it all happened यार, सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया, और शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने की, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ. शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, शुक्रगुजार हूँ उन सब मारुति लोगों का, बड़े बड़े लोगों का. और निखिल सर, ऑफ कोर्स व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारी जब पहली बार नरेशन हुई थी इस फिल्म को लेके, तो मेरा पहला सवाल यही था कि सर इसकी शुरुआत हम कब कर सकते हैं. और मैंने कोई सवाल नहीं पूछा कि ये फिल्म में क्या है, कब है. मैंने पूछा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ ना, हम ये कर रहे हैं ना. कह रहे हैं वो बाद में देखेंगे, अभी बात की बात है. सो रेस्ट इज हिस्ट्री, और बस यही बोल सकता हूँ मैं अभी. करण सर बहुत अच्छा करते हैं जब वो बोलते हैं हाँ, तो मैं कह देता हूँ उनके बिहाफ पे, वेलकम टू द मूवीज. थैंक यू. गिव इट अप फॉर लक्ष्य, लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑफ कोर्स द ड्रीम टीम. आपके कुछ सवाल थे जो पूछे थे डायरेक्टर साहब से या इस टीम से? No, not really, because I remember auditioning for the part, and उसके बाद जब मैंने script पढ़ी थी, I was like, what is this madness? Right. And immediately after reading the script, I was like, okay, when are we starting? Right. So it was that. So not really any questions, but just very, very thankful to the entire team for making me a part of it. Thank you so much. Raghav, this one's for you. Talk to us about this team and this entire experience. और राक्षस हो क्या? वो तो मतलब feel ही आ गया वहाँ पे. हाँ यार, बात तो वैसे सही है. यार मैं तो बैक डांसर बनने आया था यहाँ, तो मेरा तो सब बोनस ही बोनस चल रहा है इस वक्त. देखा जाए तो मैं आया था ट्रेन पकड़ के, मेरे को 13 साल हो गए हैं मुझे भी. ऐसे सर ने बोला कि मुझे काफ़ी वक्त से सर जानते हैं. अच्छा, मतलब मेरे साथ नेपोटिज्म
मेरे साथ क्या? तो मतलब मेरे साथ नेपोटिज्म हुआ है क्योंकि आप मेरे को जानते हो। नहीं बट यस, मुझे मेरे लिए यार मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं एज एन एक्टर अपने आप को लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं कि मैं भी हूं और एक्ट कर सकता हूं। हालांकि मैंने डांस भी किया है, कोरियोग्राफ भी किया है, होस्ट भी किया है। अब ये नया अनुभव है, ये बस एक अनुभव ऐसा भी। आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस, ये फ्लो में हूँ अभी मैं। एंड थैंक यू सर, एंड थैंक यू गुनीत की एंड सर की, आपने निखिल सर की मुझे भरोसा किया कि मैं कर सकता हूँ और सिर्फ डांस और होस्टिंग और इन सब के अलावा एक्टिंग भी कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और बस यार यही है। Thank you so much. जोरदार तालियां राघव के लिए, ladies and gentlemen. Come. My question is to you, Lakshya. Samina here from Zoom. Ever since this debate has started of nepotism, और उसमें आपको एक lead role दिया गया है, and you know you're just the one who's killing it right now, as you know the movie states. Many a times, such a humongous contribution we don't see when a new face is launched. What are your thoughts on that, and being launched as a newcomer? So to begin with, as you said that outsider, I think probably on a piece of paper you can write I'm an outsider, but I never felt like an outsider in this company. As you, I'm sure you are aware of the first film that didn't work out for me, and after that also I never felt that this company or this team has ever let go of the support they showed to me from the very beginning. And so I see the amount of time and the efforts everybody has put in me, and it puts me in a little bit of position of pressure, but I mean I can do, I'm trying my best, utterly grateful for what they've done for me, and I don't feel like an outsider, to be honest. I've always felt that they have got my back and they're always there, and when Kill also happened, like it just happened. I just got the script and they were like, you read the script, and when I read the script, and of course Nikhil also quite liked me for the part, and it all panned out pretty well for me. And when I think Apurva sir came for the first time to see what we were shooting, and when he saw some rushes, and he just came to me and he said, "Bless you, son." He said, "Bless you," and that's what he said. And I think we were halfway through the film when Karan sir came and watched the film, and I think Nikhil sir and we were standing outside the set, just like two kids waiting for the teacher to come out and tell us how we have done in the exams. Cut to, I look at him and he's like, "Wow." Hi, good evening everyone. Yeah, fantastic trailer, killer trailer. My question, मेरा question लक्ष्य से है. लक्ष्य, आप सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं और आपकी जो ये जर्नी है बहुत इमोशनल रही होगी, क्योंकि आपकी फिल्म का जो ट्रेलर है मैसिव है और आपकी ये फिल्म भी मैसिव है. तो ये जर्नी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इमोशनल है आपके लिए, उसके बारे में कुछ बताइए हमें. जर्नी बहुत ही स्पेशल है. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है मेरे आसपास. इट्स टू गुड टू बी ट्रू. एज यू राइटली सेड कि टीवी में मैंने 6 साल काम किया है और बहुत कुछ सीखा है टीवी से भी, बट अल्टीमेटली गोल यही था कि एक दिन फिल्मों में आना है, फिल्म स्टार बनना है. तो आज जब ये सब मुकम्मल हो गया, ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये हो भी रहा है. मतलब somebody should come and pinch me and tell me that wake up, it's a dream. कभी भी it's not a dream. I think it's love you man. चलो कोई नहीं यार, प्यार से जो भी बुलाओ चलेगा. बट हाँ, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ. अगर मैं शायद बहुत नया हूँ यार, मेरे को ये फीलिंग की आदत नहीं है. मुझे ये पता नहीं है कैसा महसूस होता है जब ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो रही होती है. आई थिंक मैं ऑलमोस्ट आई क्राइड ओवर देयर, एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा वो दिस इज़ हाउ इट फील्स लाइक. इतनी बड़ी स्क्रीन पे, मतलब टीवी छोटी स्क्रीन से सीधा इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतने सारे लोगों के सामने, और सब आपको काम को पसंद कर रहे हैं. तो बहुत बड़ी फीलिंग है. मेरे पास कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए, लेकिन बस चाहता हूँ कि ये फीलिंग चलती रहे इसके आगे से. मतलब ये कभी जाए ना मेरे अंदर से, और ये बढ़ती रहे. just keeps multiplying. That's all. Thank you. धन्यवाद. Hi. Karan, I don't know how to put this. मेरा सवाल यह है कि बहुत रियलिस्टिक सेटिंग में बहुत रियलिस्टिक एक्शन लग रहा है इस फिल्म का, जैसे कि हम तमाम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन इंडिया में और साउथ की फिल्मों में खासकर जो एक्शन होता है, दे आर ओवर डूइंग इट. लाइक जिस तरह की एक्शन सीक्वेंसेस स्पेक्टेकल वो क्रिएट करते हैं, क्या आपको लगता है कि रियलिस्टिक एक्शन को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए रियलिस्टिक सेटिंग में, और क्या साउथ की फिल्मों में जिस तरह का एक्शन होता है ओवर द टॉप, उसकी वजह से बॉलीवुड फिल्में और हिंदी फिल्मों पे उतना प्रेशर है कि वो भी कुछ इस तरह का क्रिएट करें जिस तरह से वो क्रिएट कर रहे हैं?
देखिए, आपके सवाल के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी और की फिल्म का जिक्र ना करते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमें टिपिकली हमें एक जॉनर होता है जो बुलाते जॉनर फिल्म होते हैं, जो बहुत सारी ये फिल्में वेस्ट में बने हैं, कोरिया से बने हैं, चाइना से बने हैं, जैसे है वो ट्रेन टू बुसान है, या आपने देखा है जॉन विक की जो सीरीज़ रही है, वो जहाँ एक्शन जो है वो भी एक आर्ट फॉर्म है। तो जब हम कहते हैं कि ये बहुत ब्लडी है, बहुत वायलेंट है, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम वायलेंस या खून खराबा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पर आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह वायलेंस दर्शाया गया है इस फिल्म में, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ आर्ट। जिस तरह वो कोरियोग्राफी है एक्शन की, एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस में, एक नैरो से ट्रेन में आपने जो कोरियोग्राफी वहाँ दर्शाई है, जिस तरह आपने एक्शन को कोरियोग्राफ किया है बिटवीन निखिल्स एक्सपर्टीज राइटिंग एंड मिस्टर ओज एक्सपर्टीज इन एक्शन, तो इट्स एन आर्ट फॉर्म। तो हमने कभी नहीं सोचा कि हम रियलिस्टिकली कर रहे हैं या ओवर द टॉप कर रहे हैं या किसी और को हम एम्यूलेट कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हम पहली बार हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते थे कि इस किस्म की जो कोरियोग्राफ्ड आर्टिस्टिक एक्शन और वायलेंस है वो हम दिखा सकते हैं और हम एज एन आर्ट फॉर्म आपको दिखा सकते हैं। तो यही हमारी तरफ से, यही प्रयास था हमारी तरफ से और यही कोशिश थी कि हम कुछ ऐसा करें जो अलग हो। और बहुत सारी एक्शन फिल्में बनी हैं, बहुत सारा बजट वाला भी खर्चे वाली फिल्में बनती हैं, लेकिन जहाँ वाकई सोच विचार बिना कोई वीएफएक्स की आप काम करें, जहाँ वाकई बहुत सारा सोच जाता है उस कोरियोग्राफी में, इसी का हमने यही कोशिश की थी। और यही चाहत है कि जब ऑडियंसेस देखेगी तो दे विल अप्रिशिएट द वर्क दैट गोज इनटू दिस कोरियोग्राफी ऑफ एक्शन। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले आपने भी सोशल मीडिया पे डाला था कि आप एक एक्शन फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी नहीं सॉरी सर, मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने टाइट स्लैप की बात की तो फटक से जहन में मेरे वो जो कंगना रनौत वाला इंसिडेंट है वो याद आ गया, तो इस पर आपके क्या रिएक्शन है? देखिए, आई डू नॉट सपोर्ट और कंडोन एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, वर्बल और फिजिकल। थैंक यू। Hi Karan, this question is for Nikhil and Karan here. Can you guys see me? Abira from NDTV. Nikhil and Karan, both of you, what did you see in Laksh that you were convinced that he is the guy? Because we have so many actors today. What was that one thing that you were convinced that he is the one for Kill? As a filmmaker, I think it's very important for you really to hone your instinct. That's all you really have as a strong missile device, a support system. You have an instinct. There's nothing. Everything I've ever done in my career, right or wrong, any of those have always been born out of an instinct. There have been filmmakers who have walked in, and done like literally a 5-minute narration, and in 5 minutes I have known whether I will make this film or not. I've just gone on the vibe, and there have been multiple filmmakers where there was Ayan Mukherjee, or it was Shashank Khaitan, it was Shakun Batra, it was it was Raj Mehta, it was Sharan Sharma, it was so many, and I'm mentioning just a few. We've introduced over 25 debut filmmakers and about 7 to 8 lead actors. It's always been on instinct. With Laksh, it was just that. When I saw his audition, it was immediately, like in 2 minutes, I knew that we are going to do something solid and special with him. There was nothing. I had not seen anything of his on TV. I hadn't seen the show that was immensely liked that he had done. I hadn't seen anything. I literally saw that 2.5-minute audition. And on that 2.5-minute audition, I was like, we have to cast him. And that was it. So it was just an instinct. And I remember feeling that instinct when I even auditioned Alia. It was literally when we auditioned her in 2011, when we were casting for Student of the Year. Again, I met her. It was a meeting. In 2 minutes, I knew I'm going to cast her in Student of the Year. That audition was just a formality because I'd already spent time chatting with her. I hadn't met Laksh. And literally, we shot her that evening, and it was the same thing. It was just from your heart, there comes an inner voice that tells you, yes, this is it. And that's exactly what happened with Laksh. मैं भी लक्ष्य के लिए कुछ कहना चाहूँगा अभी। मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सालों से एक्शन देखते आया हूँ और हमारे बहुत फिजिकली एक्शन होता है हर जगह में। कुछ टाइम से मैं फिल्म्स देखता हूँ, इसमें सब उछल भी जाते हैं, टांगे भी खोल देते हैं, सब होता है। बट कुछ इनर लाइफ ही ब्रिंग्स समथिंग
पर्सनल जो आंखों में आता है इसकी। एक्शन तो मारधाड़ सभी कर रहे हैं, बट बहुत समय बाद मैंने किसी का एक्शन देखा जिसमें यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू हिम वाइल ही इज डूइंग द एक्शन, और वो सब आंखों में दिखता है इसकी। तो ये टैलेंट मुझे नहीं लगता, आई थिंक अभी तक मुझे नहीं लगता, मैंने बिल्कुल बच्चन साहब को देखा है वो करते हुए कि वो आंखों में लाते थे, बट यस मुझे यार आई लव हिम। एंड आप जब देखेंगे आप सीट पकड़ लेंगे ऐसे, वो ये करता है यार, ये बहुत खतरनाक करता है यार भाई एक्शन के मामले में। तो यार यू आर लव यू बाबा, लव यू। और सामने वाले एक्टर की भी हेल्प करता है उतनी ही, अगर ये ऐसे नहीं करता सामने वाला भी मतलब फट हो जाता है एकदम, भूल जाता है, तो बताना पड़ता है बार बार सीन के बीच में।